तो फर्स्ट हम मेमोरी पार्ट में देखे थे डिटेल्ड में। मेमोरी पार्ट में था अपना शेयर्ड फुल शेयर्ड फुल शेयर्ड फुल में था। हेलो, लाइब्रेरी कैश। हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ सर सुना दे रहा है। ठीक है, ये पढ़ा था। प्लस और क्या था इसमें? डेटाबेस बफर कैशे। बफर कैश प्लस लार्ज पुल प्लस जावा पुल प्लस रेडू लॉग बफर कैश, ये पढ़ा था डिटेल में। अब ये लार्ज पुल और जावा पुल अपने लिए ऑप्शनल होता है, ठीक है, दे आर ऑप्शनल। और मेन काम हम रेडू लॉग बफर कैशे में करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होल्ड करके करता है, क्या करता है, वो सब तो पता होगा, नहीं बताएंगे अभी। नेक्स्ट बीजी प्रोसेसेस के बारे में देखे थे। एसमॉन, डीमॉन, फिर क्या था? टीबी, डब्ल्यू आर, टीकेपीटी, एलडीडब्ल्यू, ये सब देखा था। आर्काइव। हाँ वो देखा था, ठीक है। अब स्टोरेज, स्टोरेज में क्या था? डेटा फाइल था। फिर क्या होता है? कंट्रोल फाइल होता है। नेक्स्ट क्या होता है? रीडू लॉग फाइल। रीडू लॉग फाइल। बस यही तीन होता है? नहीं, और होता है। ओ आपका होता है पासवर्ड फाइल भी होता है, ठीक है। फिर अलर्ट लॉग फाइल होता है। पैरामीटर फाइल होता है, ठीक? ये सब होता है। अब हम कुछ डिटेल में देख लो, थोड़ा सा एक एक पॉइंट हम देख लें। तो डेटा फाइल, व्हाट डज डेटा फाइल कंटेन्स? Data file contains user data. Okay, all the data present in user are present here. ठीक है। Now, second, control file. Control file contains the information of database. Okay, what is the size of database? What does it contains? Means how many there are control files, how many redo log files. Okay, where where is the location of control file, where is the location of uh, redo log file, checkpoint information, what is the password file, where it is kept. All these kind of informations are stored in control file. That's why we call it a brain of database, because it contains all the informations of database, checkpoint information, RBA, all the information. Okay. Next, we come to redo log file. Redo log file. Redo log file contains redo entries, because LGWR flushes all the redo entries into the redo log file.
So redo log file contains all redo entries. So now also redo log file, from redo log file instance recovery is done. Okay. Now coming to next. फिर से एक बार बोलिए redo log file लास्ट क्या बोले? redo log Insert- फाइल में redo एंट्रीज होती है हाँ और हम लोग इंस्टेंस रिकवरी जो करते हैं तो वो कहाँ से होता है, ये redo log फाइल से ही होता है। ठीक है, क्योंकि सारा डेटा जो रहता है वो redo log फाइल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू parameter file. Okay, so parameter file contains all the information about database configuration. Okay, now what type of database configuration? At the time of startup, what we see: SGA size, database buffer size, block size, different, and also as all the SGA size, then redo log size. These all informations which are related to database configuration are stored here. Okay. Without this, the database will not open or will not start. Okay. With by the help of parameter file, our database starts. Now coming to the next file, that is password file. Password file means it holds some password of database. Okay, so this file is used for remote connectivity. Means suppose your database is in Delhi and you are in Kolkata. How do you log in with that Delhi's database? You need some password to log in with that database, and you can start the work with database. So that password, who holds that password? That password is holded by password file. Okay. Now coming to next, alert log file. Alert log file contains ORA error. Do you see any ORA error till now? Have you seen any ORA error while No, executing command? You didn't see that. मशीन है आप लोगों के पास? मशीन है खुला हुआ? yes sir. हाँ तो उससे आप सेलेक्ट फ्रॉम ईएमपी करो. तो खुला हुआ नहीं है, start हो रहा है अभी. मैं स्टार्ट कर देता हूँ.
हाँ, तो अलर्ट लॉग फाइल क्या करता है? इट कंटेन्स all or errors, okay, that we see while executing some statements. And there is one more file that is named as trace file. Okay, so the trace file, what does this trace file contain? Trace file contains all the detailed analysis of the or error that we get from alert log file. Okay. हाँ सर, एक बार और रिपीट करेंगे। इसको रिपीट करना। वो सर ट्रेस फाइल ट्रेस फाइल डिटेल्ड एनालिसिस, उसमें इंफॉर्मेशन रहता है, मतलब अलर्ट लॉग फाइल में जैसे शॉर्ट में लिखा रहता है कि ये एरर है, बट इन ट्रेस फाइल वी गेट डिटेल्ड, जो जो एरर आया हुआ है अलर्ट लॉग फाइल में उसका डिटेल्ड में वहां पे इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है, मतलब वो एरर का सिर्फ डिटेल इन्फॉर्मेशन। हाँ। अरे एक्सप्लोर प्लस के बाद ठीक है, यहाँ कनेक्ट करते हैं स्कॉट। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम emp करते हैं, क्या दिख रहा है इधर? ये दिख रहा है ओडा 00936, यस सर। ये सब पूरा एरर होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप। हाँ एरर कोड है क्या? हाँ, यही इसी का इंफॉर्मेशन रहता है कि देखो अभी ये जो टोटल यहाँ पे लिखा ना, ये तो वो अभी अलर्ट लॉग फाइल में आ गया होगा कि यहाँ पे मिसिंग एक्सप्रेशन करके एक ओरा एरर हुआ है, इसका इसका। ठीक है, अब वहां पे अलर्ट लॉग फाइल में इतना ही इंफॉर्मेशन रहेगा कि यहाँ पे मिसिंग एक्सप्रेशन हुआ है। ठीक है, और इस स्टेटमेंट में हुआ है। ठीक है, लेकिन ट्रेस फाइल में क्या रहेगा? ट्रेस फाइल में आपको बोलेगा कि किस यूजर में हो रहा है, किस यूजर में, अगर मेरे पास और डिफरेंट डिफरेंट सेशंस होते तो उसमें पता लगता है कि वो किस सेशन में हो रहा है, ये सब डिटेल थोड़ा एनालिसिस करके उसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है ट्रेस फाइल। ठीक है, वो उसको देख सकते हैं क्या? हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं। अलर्ट लॉग फाइल हम लोग के लिए होता है। ठीक है, और जनरली ट्रेस फाइल ऑरेकल टीम देखता है। ठीक है, जब हम लोग से कुछ नहीं होता है, जब कोई भी इश्यू सॉल्व नहीं होता है तो ऑरेकल टीम से कंसल्ट करते हैं, तो ऑरेकल टीम अपने से ट्रेस फाइल ही मांगता है, अलर्ट लॉग फाइल नहीं मांगता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो एक्स्ट्रा में क्या होता है? ट्रेस फाइल। ठीक है, और एक होता है आर्काइव फाइल। ठीक है, वो हम बताएं। ठीक है, क्लियर? एक और होता है, एक टर्म है LRU, इसका फुल फॉर्म पता है? हम्म,
इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है वो बताते हैं। जो कमांड फिलहाल यूज नहीं हुआ है, आई मीन नियर फ्यूचर पास्ट यूज नहीं हुआ है, हाँ, वही है ना रिसेंटली यूज। क्लियरली समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। मतलब जो अभी यूज नहीं हुआ है, लास्ट जितने भी कमांड्स यूज हुए हैं उसमें जो कमांड रिसेंटली यूज नहीं हुआ है वो लीस्ट रिसेंटली यूज। सपोज यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 3 यूजर्स है। पहला यूजर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मारा, दूसरा भी मारा, तीसरा भी मारा, फिर ये लोग ये अपडेट मार रहा है, फिर ये इंसर्ट मार रहा है, ये सेलेक्ट मार रहा है, ऐसे करते करते ठीक है। और फिर उसके बाद फिर ये अपडेट मारा, फिर जो भी है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये सेलेक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट, ये स्टार वाला वन मारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। ठीक है, ये लोग मारा, फिर ये अपडेट मारा, फिर ये इंसर्ट मारा, ये ऑल्टर मारा, फिर ये इंसर्ट मारा, ये अपडेट मारा, ये सपोज डिलीट मारा। ठीक है, ऐसे करते करते ये लोग किया। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं तो ये डिलीट मारा, ये हो गया, ऑल्टर मार दिया, और ये अपडेट मार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो पहला पार्ट में तो सब सेलेक्ट मारा स्टार फ्रॉम ईएमपी, फिर ये अपडेट मारा, फिर ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट मारा, लेकिन ये लोग ये जो कमांड है वो पहले मारा, बाद में नहीं मार रहा वो तो। ठीक है, तो एक तरह से ये आउटडेटेड हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ठीक है, और आर्किटेक्चर में क्या बताया था कि अगर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट होता है तो वो क्या होता है, लार्ज पूल में जाता है कि नहीं जाता, सॉरी शेड पूल में जाता है कि नहीं, क्या होता है पहला हाँ, स्टेप शेड पूल में जाता है। उसमें क्या होता है, लाइब्रेरी कैशे में पार्सिंग होता है, पासिंग होता है, पार्सिंग में सिंटेक्स होता है, सिमेंटिक नेक्स्ट सिमेंटिक होता है। ठीक है, तो ये जो सिंटेक्स होता है, ये सब करने के बाद ये सिंटेक्स कहाँ पे होता है, लाइब्रेरी कैशे में। और लाइब्रेरी कैशे में क्या रहता है, एक सिक्वल एरिया होता है जहाँ पे इसका एक हैश कोड जनरेट होगा। ठीक है, वो यहाँ पे रहता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, अपडेट बार बार यूज हो रहा है ना, तो अपडेट भी इधर होगा, अपडेट का भी होगा, इंसर्ट का भी होगा, ठीक है, ऑल्टर का भी होगा, और सेलेक्ट का भी होगा, ये सभी चीजें होंगी। तो यहाँ पे आप देखो सेलेक्ट तो बहुत पहले यूज हुआ, अब तीन बार और एग्जीक्यूशन के बाद क्या सेलेक्ट यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लेकिन तो एसक्यूएल एरिया में तो इसका तो हैश कोड पहले से रहेगा, रहेगा ना, सबका रहेगा। लेकिन बार बार कौन सा यूज हो रहा है, हमारा अपडेट यूज हो रहा है, इंसर्ट यूज हो रहा है, ऑल्टर यूज हो रहा है। ठीक है, अब सेलेक्ट तो आउटडेटेड टाइप हो गया, वो यूज ही नहीं कर रहा कोई। तो क्या होता है, ये सेलेक्ट जो स्टेटमेंट हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज, मीन्स ये बहुत कम यूज हो रहा है। तो इसका जो प्रायोरिटी है उसको क्या करेगा, पहले अपडेट ऑल्टर या इंसर्ट को रखेगा, और लास्ट में ये क्या करेगा, सेलेक्ट को रखेगा। ठीक है, मीन्स क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा है, अब जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है उस कमांड को सबसे पहले रखते हैं लोग। ठीक है, अब बाय द यूज ऑफ कमांड ये ऑर्डरली उसको मेंटेन करता है। ठीक है, अब सपोज सभी को अपडेट ज्यादा चलाने लगे, सभी यूजर अपडेट ज्यादा चलाने लगे, तो पहले अपडेट को ले लेगा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी अपडेट को देगा। फिर क्या करेगा, अब सपोज ऑल्टर सबको एक बाद में चलाने लग गए तो ऑल्टर सेकंड प्रायोरिटी देगा, फिर वैसे करते करते इंसर्ट देगा, फिर सेलेक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे कम यूज होता है उसको सबसे लास्ट में रखता है। क्यों, क्योंकि अभी तो हम लोग का फंक्शन में अपडेट ऑल्टर इंसर्ट है। ठीक है, तो ये सब मेरा पहले रहेगा तो मेरा एग्जीक्यूशन भी फास्ट रहेगा, और डेटाबेस क्या, फॉर एफिशिएंट डेटा क्या होना चाहिए, जो हम लोग एग्जीक्यूट की कमांड वो फास्ट होना चाहिए। वो स्लो हो जाएगा तो डेटाबेस तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डेटाबेस अगर लोड देने लगेगा तो वो स्लो होता है ना।
तो अगर लोड लेने लगे तो फिर टाइम रिसोर्स भी अपना खाएगा सब, टाइम एंड रिसोर्स बोथ। तो ये तो मेरे लिए एफिशिएंट नहीं है ये डेटाबेस। तो इसलिए ये एलआरयू क्या करता है कि जो सबसे कम कमांड यूज होता है, जो सबसे कम बार जो यूज होता है, जो अभी यूज में नहीं है, उस कमांड का हैश कोड तो जनरेटेड है, बट उसको क्या करता है कि उसको लास्ट प्रायोरिटी देता है। और जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो कमांड बाय द यूजर, दैट कमांड will be given as first priority, okay, from LR. क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अब हम आते हैं, इसमें आते हैं रीडू लॉग फाइल में आते हैं। ठीक है, आपको सारे फाइल्स पता लगे। पहले डेटा फाइल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, डेटा फाइल में भी फाइल्स बहुत सारे होते हैं। बेसिकली डेटा फाइल contains different data files. That is, first one is system data file, second one is CSOX data file, okay, third one will be user data file, okay, fourth one is temp data file, and fifth one is example data, okay। ये सब डेटा फाइल क्रिएट होती है बाय डिफॉल्ट। अब ये सब फाइल्स कहाँ क्रिएट होती है, कब क्रिएट होती है इंस्टॉलेशन में, आप बताओ। कभी क्रिएट होती है ये सब डेटा फाइल? डेटाबेस जब क्रिएट होता है तब, क्या जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं हम लोग तब। आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं नहीं, बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना, बता रहे हो ना पूछ रहे हो, आप बोल रहे हो। ठीक है, तो डेटाबेस जब क्रिएट होता है तब ये बनता है। आप देखे होंगे जब समरी आता है तो ये सब का लिखा रहता है, सिस्टम से सब यूजर टेम्प एग्जांपल लिखा रहता है। ठीक है, जब डेटाबेस क्रिएट होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजर। ठीक है, यूजर देखते हैं। तो सपोज आपके पास एक यूजर क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप तो यूजर क्रिएट किए हो कभी? यूजर क्रिएट करने आता है आप लोगों को? हाँ, हाँ, नो सर। आप लोग यूजर क्रिएट करने नहीं आता? हाँ सर आते हैं। किसको नहीं आता? किसको नहीं आता? यूजर क्रिएट करने का मतलब क्या है सर? जैसे आप टेबल क्रिएट करते हो, यूजर भी क्रिएट करते हो ना? नहीं पता सर, सिर्फ टेबल ही क्रिएट किया हम लोग तो। अच्छा, सिर्फ टेबल किया है। और कौन है जो कि यूजर ने क्रिएट किए हैं? सबको यूजर क्रिएट किए है? हम लोग को तो लास्ट क्लास में बताया था कैसे क्रिएट करते। हाँ। हम लोग तो क्रिएट, कौन बताया था? आपने बताया था, मतलब अच्छा लास्ट क्लास में तो सीक्वल का अच्छा, लास्ट क्लास। हाँ तो क्या कमांड होता है यूजर क्रिएट करने का? क्रिएट यूजर, यूजर नेम। क्रिएट यूजर, यूजर नेम, बस क्रिएट हो जाता है। हाँ, हाँ ऐसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्रिएट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। क्या बोलते हो सबको? क्या इतना कमांड लिखें तो यूजर क्रिएट हो जाएगा?
ये कमांड लिखा तो क्रिएट हो जाएगा यूजर। सजेशन दो सब। सर नहीं, सर श्योर नहीं हो पर नहीं। हाँ सर नहीं नहीं, और होगा कमांड। बाकी और क्या बोल रहे हैं? आयन हेलो। सुपर यूजर में जाके ये क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा तो। हाँ तो सुपर यूजर में जाएंगे सर, सुपर यूजर ही को प्रिविलेज होता है यूजर क्रिएट करने का। हाँ मैं पूछ रहा हूँ कि ये कमांड लिखूंगा तो हो जाएगा हाँ, एग्जीक्यूट? हो इससे तो हो जाएगा। पासवर्ड भी तो होना चाहिए ना सर। हाँ पासवर्ड तो कितने देंगे? पासवर्ड भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, मैं सिर्फ ये बोला पहले, ये कमांड अगर लिखने से एग्जीक्यूट होगा कि नहीं पता नहीं। पता नहीं। नहीं सर। अच्छा ये लिखेंगे तो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं स्कॉट में? हाँ सर होगा। हाँ हाँ सर। होगा। हाँ सर होगा। सर EMP। EMP अगर टेबल पे होगा तो होगा। सेमीकोलन देना पड़ेगा। ठीक है। EMP के कौन बोला? कौन बोला? शुभम सर। मैंने हाँ EMP के बाद सेमीकोलन देना होगा सर। हाँ कौन कौन हुआ, मतलब नाम क्या है आपका? मेरे को आवाज नहीं समझ में आया। देवजीत बोले ना? सर हाँ हाँ सर। बहुत सही, यही तो देखना था। ओ अच्छा अच्छा। सेमीकोलन है ही रहेगा ही नहीं तो एग्जीक्यूट कैसे होगा ये दोनों कमांड? अच्छा ये और हम इसको इतना कमांड लिख के भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें पासवर्ड भी देना हो तो यहाँ पे ये चीज यूजर नेम, उसके बाद क्या लिखते हैं? स्लैश स्लैश देके क्या लिखते हैं? पासवर्ड नहीं नहीं। नहीं आइडेंटिफाइड बाई। हाँ हाँ भाई पासवर्ड जो देना है यूजर पासवर्ड। वो यहाँ पे दे दो, ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड दे दो हाँ तो वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यूजर ऐसे ही क्रिएट करते हैं हम। और कहाँ करते हैं? सुपर यूजर में, क्योंकि उसको प्रिविलेज होता है यूजर क्रिएट करने का। क्लियर? तो यहाँ पे यूजर क्रिएट किया। अब यूजर के अंदर हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। उसमें सपोज टेबल है, टेबल के अंदर सारे डेटा हम लोग डालते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं। तो इस यूजर के अंदर आप देखो टेबल बनाए डिफरेंट, टेबल 1 बनाए होंगे, टेबल 2 बनाए होंगे, टेबल 3 बनाए होंगे, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा दिए हो, फिर व्यूज बना सकते हो, इंडेक्स बना सकते हो। ये सब जो चीजें हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर यूजर की इस यूजर डेटा फाइल में रहती हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? अब इसमें और एक चीज बताते हैं। अब ये यूजर डेटा फाइल में रहती है तो आप लोग आर्किटेक्चर तो पढ़े होंगे। तो आर्किटेक्चर में क्या था? शेयर्ड पूल था, डेटाबेस बफर कैसे था, डेटाबेस बफर कैशे ये था। तो डेटाबेस बफर कैशे में कोई ब्लॉक्स नहीं रहता तो वो कहाँ से उठा के देता था? डेटा फाइल्स। डेटा फाइल्स कौन उठा के देता था? सर्वर प्रोसेस। हाँ, उसका एक कॉपी ला के इधर रखता था सर्वर प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो डेटा है वो कहाँ रहता है? यूजर डेटा फाइल में रहता है, ठीक है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कोई यूजर के अंदर कोई टेबल का वो डेटा है या फिर कोई डेटाबेस ऑब्जेक्ट का डेटा है ना। तो ये सब जो ब्लॉक्स रहते हैं ये सब
यूजर डेटा फाइल में जाएंगे, ठीक है, जो कि आप यूजर से रिलेटेड कुछ रिट्रीव करना चाहते हो डेटाबेस ऑब्जेक्ट से, तो वो सब डेटा यूजर डेटा फाइल एज अ ब्लॉक, ओके, तभी तो वो ब्लॉक उठा के लाता है। समझ में आया यूजर? यस सर। नेक्स्ट हम आते हैं अब हम लोग सिस्टम में, ठीक है। सिस्टम डेटा फाइल बहुत इंपॉर्टेंट डेटा फाइल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग प्राइमरी डेटा फाइल भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी डेटा फाइल बोलते हैं। अब प्राइमरी डेटा फाइल में क्या रहेगा? ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिस्टम, जो भी आप मशीन यूज करो उसका सारा डेटा इसमें रहेगा। अगर सिस्टम डेटा फाइल मतलब इसमें डेटाबेस कितने कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्या क्या साइज मिला हुआ वो सबको, ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें रहता है, मतलब मेन इंफॉर्मेशन। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा? क्या डेटाबेस ऑन होगा, चलेगा? क्या लगता है? नो सर। नहीं चलेगा, क्योंकि ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि कौन सा डेटाबेस है, क्या है। अब वो सब डेटाबेस इंफॉर्मेशन सब यहाँ है, नहीं तो ये सब वो क्या डायरेक्टरी है मेरे को समझ में नहीं आया, वो ऑन ही नहीं होगा, ठीक है, चालू ही नहीं होगा। और सिसऑक्स डेटा फाइल में आते हैं वो होता है, हाँ क्या बोल रहे हैं? सिसऑक्स डेटा फाइल होता है ऑक्सिलरी डेटा फाइल, ठीक है। और ये क्या रखता है? ये स्नैपशॉट रखता है। स्नैपशॉट पता है सबको क्या होता है? सर हाँ, नो सर, स्नैपशॉट नहीं पता? नहीं सर। और किसी को? स्नैपशॉट क्या होता है? स्क्रीन कैप्चर। हाँ वही होता है, स्क्रीन कैप्चर या फिर स्क्रीनशॉट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैसा इंफॉर्मेशन रखेगा ये बताते हैं, ठीक है। सपोज आपका डेटाबेस चल रहा है, ठीक है, 24 घंटा चल रहा है डेटाबेस, ठीक है। तो सपोज सुबह का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अब डेटाबेस चल रहा है सुबह के 1 बजे से 10 बजे तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इन आवर्स 7 and 8 एन इशू कम इन डेटाबेस, ठीक है, एक इशू आ गया डेटाबेस में। और आप 10 बजे ऑफिस गए, ठीक है, आप 10 बजे ऑफिस गए और क्या हुआ कि आपको ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया कि 7 से 8 के बीच में डेटाबेस में कुछ इशू था, उसको चेक करो, ठीक है, चेक करो, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मुझे तो पता नहीं। अब मैं तो ऑफिस 10 बजे आया हूँ, अब मेरे आने से पहले 7 और 8 में क्या हुआ कि इशू हो गया डेटाबेस में, मतलब आवर है ये अपना 7 बजे या 8 बजे, ठीक है, 7 o'clock और 8 o'clock वहां इशू हो गया। तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये डेटाबेस का इशू क्या था, कैसे पता करेंगे? तो हम लोग इशू कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या होता है इन डेटाबेस में क्या होता है कि टाइम टू टाइम स्नैपशॉट लेता है, ठीक है।
टाइम टू टाइम स्नैपशॉट लेता है डेटाबेस, ठीक है। और इस स्नैपशॉट को हम पढ़ सकते हैं एज अ डेटा रिपोर्ट, ठीक है। और स्नैपशॉट किसका लेगा, टाइम टू टाइम जो लेता है, मतलब इसके बीच में क्या क्या एक्टिविटी हुआ, इसके बीच में क्या क्या एक्टिविटी हुआ। सपोज 1 आवर का स्नैपशॉट वो लेके रखता है, ठीक है। 1 आवर का या फिर जो भी इसका अपना टाइम शेड्यूल है उसके अनुसार ये स्नैपशॉट टाइम टू टाइम लेते रहता है, ठीक है। तो कोई बैरियर नहीं है इसमें, टाइम टू टाइम वो लेते रहेगा। अब टाइम टू टाइम लेते रहेगा तो मेरे तो पता लगेगा ना कि इस आवर से इस आवर के बीच में क्या होगा, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक है। सारा एक्टिविटी मेरे को पता लगेगा और वो एक्टिविटी पता लगता है एज अ रिपोर्ट, ठीक है। ये सब स्नैपशॉट का एक रिपोर्ट मिलता है जो कि सेव रहता है, ठीक है। तो वो जो स्नैपशॉट रहता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या इश्यू हुआ, क्या एक्टिविटी चल रहा है, तो वो सब जो इंफॉर्मेशन होता है वो सिसॉक्स डेटा फाइल में होता है, ठीक है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्या हो गया, सिस्टम हो गया, सिसॉक्स हो गया, यूजर हो गया। अब आते हैं हम लोग ऑर्डर बाय यूज किए हो सब कोई? यस सर। यस क्या होता है ऑर्डर बाय? तो ऑर्डर व्हाट उसी करना कॉलम आउटपुट आता है। ऑर्डर बाय अगर कॉलम ने उसके बाद PSC अगर देंगे तो लार्ज टू स्मॉल आएगा। Basically, order by is a clause used to arrange specific row in ascending and descending order. Okay? यस सर। तो ये ऑर्डर बाय जो होता है ये बहुत लोड ले देता है, ठीक है। ये बहुत लोड देता है डीबी को, ये एक अननेसेसरी वर्क है, ठीक है। अब अननेसेसरी वर्क है तो ये लोड देता है डीबी को, ठीक है। तो अब ये ऑर्डर बाय आप लोगों को पता है कहाँ पे होता है आर्किटेक्चर में, कौन से जगह पे वो ऑर्डर बाय करेगा? टेम्प शेड शेड ओके पूल में करेगा कि डेटाबेस बफर कैशे में। डेटाबेस बफर कैशे में ऑर्डर बाय करेगा? हाँ और कोई नहीं करेगा उसमें? नहीं, डेटा फाइल्स में रीडू करेगा लॉग शायद। सर डेटा डेटा फाइल्स में फाइल्स करेंगे। में जब वो ब्लॉक लाता है तब भी वो सुनो 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 सब कुछ सुनो। यहाँ पे क्या बोला कि ऑर्डर बाय जो है अननेसेसरी वर्क है, वो लोड देता है डेटाबेस, और ये पार्ट है हमारा मेमोरी पार्ट। अगर मेमोरी पार्ट स्लो हो जाएगा तो मैं जो भी यूजर्स है वो सबका एग्जीक्यूशन सब स्लो हो जाएगा, रिसोर्स वो लोग का थोड़ा कम हो जाएगा, वो लोग का टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगा। तो ये चीज की वजह से हम लोग का डेटा लॉस भी हो सकता है। और एक क्या अश्योर करता है कि डेटा लॉस नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये सब अननेसेसरी वर्क जो ऑर्डर बाय का होता है इसके लिए एक स्पेसिफिक डेटा फाइल है जो कि होता है टेम्प, ठीक है। तो ये जो जब भी हम लोग ऑर्डर बाय चलाते हैं तो ये यहाँ पे चलता है टेम्प डेटा फाइल में, ठीक है। तो फॉर ऑर्डर बाय ये सब के लिए टेम्प रहता है। क्लियर हो गया? मोनिका आप बोले थे ना टेम्प, यस सर। आपको कैसे पता था? सर पता नहीं था सर, जैसे आपने बोला कि वो यूजलेस है, अननेसेसरी है, तो टेम्प तुक्का। चीजें हम अच्छा हटाते हैं, तुक्का लगाया था। हाँ वो रन में जाके आप लोग टेम्प करते हो ना परसेंटेज टेम्प परसेंटेज करके। यस चलो फिर अब बच गया एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या रहता है, एग्जाम्पल में जो भी सैंपल स्कीमा होता है आपका वो रखता है, ठीक है। तो सपोज इफ यू वांट टू वर्क इन डेटाबेस, ठीक है, देन अब मेरा तो अभी नया नया डेटाबेस बना है, तो अगर मेरे को वर्क करना है डेटाबेस में तो क्या होगा?
तो Oracle क्या करता है, Oracle गिव अस सम स्पेसिफिक स्कीमा, वो पहले से क्रिएट करके रखता है, ठीक है। तो वो हम लोग को देता है स्पेसिफिक स्कीमा विच कंटेन्स वेरियस टेबल्स एंड डेटा, ठीक है। तो यही सब जो स्कीमा होता है जो कि हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं, ठीक है, जो पहले से क्रिएटेड रहता है, वो सब क्या होता है, वो सब इस सैंपल स्कीमा में होता है, ठीक है। एग्जांपल आप ले लो, स्कॉट यूजर जो था वो आप बनाए हो, आप नहीं बनाए थे ना। इसके अंदर ईएमपी था, डीईपीडी था, ये सब पहले से बना हुआ था। ये सब सैंपल स्कीमा हो गया। एक एचआर यूजर होता है, ठीक है, उसके अंदर एम्प्लॉय वगैरह, डिपार्टमेंट्स वगैरह, ये सब करके एक टेबल्स भी होते हैं। आप लोग चाहो तो एचआर करके देखना, ठीक है। किए हो एचआर में, गए हो कभी, यूज किए हो यूजर? नहीं सर। नहीं किए हो? हाँ किए हो, ठीक। जो नहीं किए वो करके देखना, कनेक्ट करके, ठीक है। और एक डेटा फाइल होता है जिसका नाम होता है अनडू डेटा फाइल, ठीक है। ये क्या होता है? रोलबैक में यूज होता होगा। अब देखो इधर, सबसे पहले अब यहाँ पे एक बना देते पहले, ठीक है। चलो ठीक है, तब नाम अब बता दो इसका, सबको पता है तो। लाइब्रेरी कैशे, शेयर्ड पूल। शेयर्ड पूल हो गया, लाइब्रेरी कैसे? लाइब्रेरी कैशे हो गया, डेटा डिक्शनरी कैसे? डेटा डिक्शनरी कैसे? डिक्शनरी कैशे हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया? बफर कैसे? डेटाबेस बफर कैसे? डेटाबेस बफर कैशे हो गया, ठीक है। अब रीडू लॉग बफर कैशे, लार्ज पूल, और ये ऑप्शन है, जितना आपको पता है उतना काफी है, ठीक है। लार्ज पूल क्या होता है? लार्ज पूल अगर जो हैवी टास्क होता है, ठीक है, हैवी टास्क होता है, जैसे बैकअप हो गया, बैकअप एक हैवी टास्क है, ठीक है। तो बैकअप जो हैवी टास्क है वो सब कहाँ होता है? वो सब लार्ज पूल में होता है, ठीक है। और हैवी टास्क कैसे हो सकता है? अब सपोज 100 यूजर्स है, ठीक है, 100 यूजर्स है, और सबको एक साथ एक ही टाइम पे कमांड एग्जीक्यूट कर दिया डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस के
इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, डेटाबेस में लोड तो पड़ेगा ना, क्या अगर 100 यूजर एट द सेम टाइम डिफरेंट कमांड चला दिए तो क्या होगा, लोड पड़ेगा डेटाबेस पे। यस सर। कैसे पड़ेगा? सर उसका प्रोसेस बढ़ जाएगा। प्रोसेस बढ़ जाएगा, साथ साथ क्या होगा कि हर एक जो यूजर है डिफरेंट डिफरेंट कमांड चलाए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कमांड चलाए हैं तो उसका पार्सिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होगा, ऑप्टिमाइजर भी चूज करेगा डिफरेंट डिफरेंट प्लान। तो ये कितना, अगर सपोज 100 यूजर है, 1000 यूजर है, तो मेरा तो इधर दिक्कत हो जाएगा ना। तो क्या होता है कि और हमारा मेमोरी पार्ट है उसको पहले से स्पेस एलोकेट किया गया, अब इसमें अगर स्पेस फुल हो जाता है तो क्या होगा, डेटाबेस तो बंद हो जाएगा ना अपना, लोड ज्यादा पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये जो लार्ज पूल होता है वो सारे चीजें उसके बाद जब ये इधर मेमोरी उसको नहीं मिलता है और कुछ काम करने के लिए, तो वो सीधा लार्ज पूल में चल जाता है। ठीक है, तो लार्ज पूल में वो सारे कमांड्स को रन करने लगता है। ठीक है, तो ये सब जो लेंदी जो टास्क होता है जो नॉर्मल मेमोरी पार्ट में नहीं हो सकता, वो सब लार्ज पूल को असाइन किया जाता है। ठीक है, अब वैसे ही जावा पूल का क्या बताया था, जावा से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो सब के लिए एक स्पेसिफिक रीजन उसको भी दिया गया, एक स्पेसिफिक मेमोरी अलोकेट किया गया है। अगर कोई भी डेवलपर साइड से या एप्लीकेशन टीम कोई जावा का कमांड चला रहा है तो उसके लिए क्या होता है कि वो सारे चीजें उसके जावा पूल में रहता है। तो जावा पूल और लार्ज पूल मेरे लिए ऑप्शनल है, मेन काम मेरे को रीडू लॉग बफर कैशे से होता है। ठीक है, अब रीडू लॉग बफर कैशे में क्या होता है, रीडू लॉग बफर कैशे में हमारा रीडू एंट्रीज होता है, डीडीएल एंड डीएमएल स्टेटमेंट्स। ओके, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट प्रोसेस एसमॉन, पीमॉन, टीबीडब्ल्यूएन या फिर आर बोल लो, कोई टेंशन नहीं उसके लिए, क्योंकि एन नंबर ऑफ प्रोसेस मैंने बताया था आप लोगों को। LGWR, फिर सीकेपीटी, फिर एलजीडब्ल्यूआर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ले लेते हैं, यहाँ डेटा फाइल होता है, डेटा फाइल, यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल फाइल, कंट्रोल फाइल होता है। ठीक है, और यहाँ पे रीडू लॉग फाइल होता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो आप लोग, सपोज हम लोग इसको तो हम लोग ये बोलते हैं ना, इंस्टेंस को हम लोग ये बोलेंगे, मेमोरी प्लस बैकग्राउंड प्रोसेस इज इंस्टेंस इंस्टेंस, एंड दिस इज स्टोरेज पार्ट। तो स्टोरेज पार्ट क्या होता है, फिजिकल या लॉजिकल? फिजिकल। फिजिकल होता है। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे हम लोग पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी चलाते थे तो क्या होता था, लाइब्रेरी कैशे में जाएगा, पहले वो शेयर्ड पूल में आता है, शेयर पूल कौन में लेके आता जाएगा। है, सर्वर प्रोसेस लेके आएगा। यस, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर पार्सिंग होगा लाइब्रेरी कैशे में। फिर शेयर्ड पूल में जाने के बाद वो पार्सिंग करता है पहला, यस, फिर सिंटेक्स एंड सिमेंटिक चेक करेगा। चेक। नेक्स्ट क्या होगा, एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा सर्वर प्रोसेस। हाँ एग्जीक्यूशन प्लान बनाएगा। नेक्स्ट बेस्ट प्लान को क्लिक करेगा, ऑप्टिमाइजर सिक्वल बेस्ट प्लान बाय ऑप्टिमाइजर चूज होगा। फिर वो सिक्वल एरिया में रखेगा। हाँ, फिर वो सिक्वल एरिया में आके उसका हैश कोड रखेगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हैश कोड जनरेट हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि ये डेटाबेस बफर कैसे बजाता है फिर? यस अब यहाँ पे क्या होता है बताओ? सर, प्रोसेस डेटा फाइल इन ब्लॉक लेके आता है। अगर यहाँ पे जो कमांड है उससे रिलेटेड जो डेटा है वो पहले से प्रेजेंट है ब्लॉक में, तो उस सिनेरियो को क्या कहते हैं? आप लोग बताया था ना, आप लोग बताया था ना पहले कि अगर दो सिनेरियो होगा कि एक तो यहाँ पे डेटा पहले से प्रेजेंट होगा और एक नहीं होगा। हाँ, तो अब अगर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं? कैसे है? कैशे हिट। सुन लिया, आपको सुन लिया, ठीक है। क्रेडिट गोज टू यू। ठीक है। और अगर नहीं रहा तो कैसे मिस? कैसे मिस होता है, ठीक है, वेरी गुड। अब कैसे मिस है तो क्या होगा, ये डेटा फाइल से उठ के आएगा एक कॉपी, यहाँ पे डिफरेंट डेटा का ब्लॉक्स होगा, ठीक है। Yes. उस डेटा जो रेलेवेंट डेटा है इस कमांड के रिस्पेक्टिव में, उसका एक कॉपी यहाँ से उठ के इसमें आएगा, Yes. ठीक है। और कौन लेके आता है? सर्वर प्रोसेस, Every process. ठीक है। अब यहाँ पे लेके आया, उसके बाद क्या होता है? Retrieve होता है। उसके बाद सीधा रिट्रीव हो जाता था, ठीक है। उसके बाद वो रीडू लॉग बफर कैसे में जाएगा? DML DDL होगा तो जाएगा, तो DQL में। हाँ, तो इसमें नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं है इसको जाने का उधर, तो ये इतना में आके वो रिट्रीव करके दे देगा, ठीक है। ये तो सेलेक्ट का था। अब आते हैं नेक्स्ट। अब सपोज यहाँ पे अपडेट चलाते हैं, ठीक है। कमांड बताओ अपडेट का। अपडेट टेबल में अपडेट EMP। अच्छा, टेबल लिखना होगा, कुछ नहीं, टेबल ले। टेबल नेम खरीद से होगा। हाँ, अच्छा, ठीक है। सेट, फिर जो वैल्यू चेंज करना है कॉलम का वो नाम, कॉलम नेम, वैल्यू। सपोज यहाँ पे दे देते हैं आईडी दे देते हैं, हाँ, या फिर सैलरी दे देते हैं। सेट सैल इक्वल टू वैल्यू सपोज 100 दे देते हैं या 1000 दे देते हैं। वेयर कॉलम नेम जिस कॉलम में चेंज, जिस रो में चेंज करना है। वेयर सपोज ईनेम दे देते हैं, ईनेम इक्वल टू ABC, ठीक है। कमांड सही है? सबको बताओ। यस सर। हाँ, सही है, चलो फिर कोई बात नहीं, सही है। तब जैसे ही ये कमांड चला तो फिर क्या होगा, इधर वो शेड पुल में जाएगा। Yes. अब यहाँ पे अगर सपोज ऑर्डर बाय लगा लेते तो क्या होता? ये ऑर्डर बाय चल जाता टेम्प में, है ना। शेड पुल में गया, पार्सिंग किया, पार्सिंग में वो क्या किया, सिंटेक्स चेक किया, सिमेटिक चेक किया, उसमें से प्लान्स बनाया। प्लान्स बनाने के बाद क्या हुआ, बेस्ट प्लान बना जो कि चूज किया ऑप्टिमाइजर, लिया। अब डेटाबेस वो जाएगा फिर एसक्यूएल एरिया में सेट कर देगा अपना हैश कोड। फिर क्या होगा, डेटाबेस बफर कैशे में आता है, क्लियर। डेटाबेस बफर कैशे में क्या होगा, वहां पे अगर रहेगा अगर डेटा तो कैशे हिट करेंगे, और अगर नहीं है तो कैशे मिस हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, कैशे मिस के केस में डेटा फाइल से एक और कॉपी उठा के इधर लेके आके रखेगा, ठीक है। अब सपोज इस सैलरी का प्रीवियस
डेटा है 500 हम्म, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं 1000 में, तो वो यहाँ पे आएगा और यहाँ से रेलिवेंट डेटा जो है इसका ename equal to abc का सेल का वो ब्लॉक उठा के यहाँ पे लेके आएगा। अब यहाँ पे अपडेट करने को बोला है तो अपडेट करेगा यहाँ पे, मतलब इसको चेंज करके 1000 कर देगा हम्म, और जो 500 जो पिछला वाला था वो हट जाएगा। yes, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ये अपडेट ename वाला जो है वो DDL DML स्टेटमेंट है हम्म, तो वो यहाँ पे रहेगा। हम्म, अब क्या होता है, तो अगर कमिट करता है तो वो डेटा फिर से जाके डेटा फाइल में राइट होता है। हाँ ये होता है, लेकिन अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपडेट चला रहे, ठीक है, जैसे ही हम इधर अपडेट चलाएं तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा चेंज हुआ, 500 से 1000 लिया। सपोज आप एक यूजर हो, आप अपडेट चला दिए ये वाला, ठीक है, फिर कोई और यूजर है वो सेलेक्ट चला दिया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP चला दिया, ठीक है, थर्ड यूजर भी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP चला दिया, ठीक है, तो इन सभी को क्या क्या डेटा दिखेगा ये बताओ। सर अगर कमिट नहीं होता है तो वो 500 ही दिखेगा। दोनों किसको 500 दिखेगा, किसको दिखेगा, यूजर टू यूजर 3 को, यूजर टू यूजर 3 को 500 ही दिखेगा और अपडेट वाले को क्या दिखेगा, 1000 1000 दिखेगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको। तो अब बताते हैं इधर क्या होता है कि अपडेट कर रहे हो तो यहाँ पे जो चेंजेस हुआ, तो चेंजेस होने के बाद जो रिमेनिंग जो प्रीवियस डेटा था वो तो कहीं जाएगा ना। हाँ, तो ये जो प्रीवियस डेटा होता है वो जाता है हमारा अनडू डेटा फाइल में। अच्छा, ठीक है, ये जो प्रीवियस डेटा जो आप चेंज कर दिए वो जो चेंज डेटा है वो तो सेव हो जाता है, मतलब सेव नहीं होता है, यहाँ पे फिक्स हो जाता है, और जो प्रीवियस डेटा था वो उठ के अनडू टेबल स्पेस में चल जाता है। अब यहाँ पे अनडू टेबल स्पेस में वो परमानेंटली नहीं रहता, क्योंकि अगर सपोज वो कमिट कर देगा तो वो फिर तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अनडू टेबल स्पेस टेबल फाइल से। ठीक है, तो उसके बाद प्रीवियस अदर कमांड 1000 होगा। अब यहाँ पे केस समझो, आप अपडेट किए तो क्या हुआ कि प्रीवियस डेटा अनडू में चला गया और वहां पे सेट हो गया 1000। बाकी नेक्स्ट प्रीवियस जो 2 और 3 है यूजर, इस टाइम पे तो कमिट नहीं हुआ है। ठीक है, जब वो अपडेट किया और उसी टाइम पे ये लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP चला दिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 500 जो रहता है प्रीवियस अनडू टेबल अनडू डेटा फाइल में, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ये 2 यूजर के लिए उठ के यहाँ पे डेटा वैल्यू शो करता है। ठीक है, और इसके लिए तो चेंजेस हो चुका। ठीक है, और वही जो अदर 2 जो यूजर्स हैं उसको अनडू टेबल फाइल से उठा के प्रीवियस डेटा शो करता है, इसलिए ये लोग को प्रीवियस डेटा शो करता है और जो अपडेट करता है उसको 1000 डेटा शो करता है। अब जब कमिट हो जाता है तो क्या होता है, ये 500 यहाँ से हट जाता है और ये कॉन्क्रीट सेट हो जाता है 1000 जो होता है। अब उसके बाद फिर जो भी सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे कमिट होने के बाद, कमिट हो गया और उसके बाद कोई भी सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाएंगे तो उनको डेटा 1000 दिखेगा। ठीक है सर इसका और सर अगर उसने अपडेट क्वेरी चलाते हैं नहीं किया तो फिर टाइप का। एक एक करके बोलो। सर अगर अपडेट कर दिया लेकिन कमिट हाँ, और फिर कमिट नहीं किया, हाँ कमिट नहीं किया और ये प्रोसेस अगर उसने छोड़ दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो फिर ये डेटा फाइल वापस चला जाएगा वापस ये जो उसके बाद जो रहेगा वो प्रीवियस डेटा ही रहेगा। ठीक है, 500 ही रहेगा। अगर वो कमिट नहीं किया तो 1000 नहीं होगा। अगर सपोज ये कमिट नहीं, डेटाबेस बफर कैशे पे आ जाएगा। वो डेटाबेस बफर कैसे में क्यों जाएगा, वो डेटा फाइल में ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो देखा कि ये चेंजेस नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, ये वापस प्रीवियस डेटा रख लेगा, यहाँ से जो होगा वो रिट्रीव करके वापस उस डेटा में 500 पहले ही से देखो
आप लोगों को बताते हैं पहले उनको। इसका मतलब ये undo जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज। एक मिनट, हाँ टेम्पोररी रखता है वो। सर ये कमिट तो एक्चुअली कोई एक मिनट एक बार ये सुन लो पहले, ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछना। तो यहाँ पे देखो हमारा डेटाबेस बफर कैशे है, ठीक है, डेटाबेस बफर कैशे है। इसमें क्या था, डेटा फाइल में क्या है, इधर ये डेटा फाइल है, इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स है। एक इधर 500 का ब्लॉक्स था, तो इसका कॉपी उठा के यहाँ पे ले आया 500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक यूजर है वो अपडेट मारा, तो अपडेट मारा तो यहाँ पे ये 500 जो है वो चेंज होके 1000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो ये यहाँ से कॉपी उठा के लाया है, ठीक है। जो भी चेंजेस वो डेटाबेस बफर कैशे में हुआ, डेटा फाइल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है, डेटा फाइल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसलिए जो सेकेंड और थर्ड यूजर जो रिट्रीव करेगा डेटा उसको 500 ही दिखेगा, ठीक है। डेटा फाइल में चेंजेस नहीं होते, डेटाबेस बफर कैसे में चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए जो सेकेंड और थर्ड यूजर है उसको 500 ही दिखेगा जब तक आप कमिट नहीं करोगे। जब आप कमिट कर दोगे तो ये 1000 जो होगा 1000 डेटाबेस राइटर लेके आके फिर यहाँ पे सेव कर देगा, और ये जो प्रीवियस डेटा है वो तो आपका अंडू में गया रहेगा, यहाँ से जो था वो अंडू में आ जाएगा, ठीक है। अंडू में आने के बाद क्या होगा, अगर कमिट करने से पहले आए और सपोज ये ऑफ हो गया अपना, मतलब ये डेटाबेस को लॉग आउट कर लिया अपना, ठीक है, अपना सेशन को एंड कर लिया, लेकिन इसने कमिट नहीं मारा, तो क्या होगा कि ये रोल बैक हो जाएगा वापस, ठीक है। तो डेटाबेस में कोई चेंजेस जो प्रीवियस था वही रहेगा। अगर कमिट मार के वो गया तो क्या होगा कि ये वापस लेके आके इधर लिख देगा, ठीक है, और ये वाला जो जाएगा वो अंडू में चला जाएगा, ठीक है, अंडू में चला जाएगा, वहां पे टेम्पोररी रखेगा। अब जैसे ही कमिट हुआ तो कुछ टाइम बाद ये डिलीट हो जाता है अपने आप, ठीक है, फिर आप रिट्रीव नहीं कर सकते। अब बताओ क्वेश्चन। सर डाउट क्लियर हो गया। हाँ सर डाउट क्लियर हो गया, अब नहीं है क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन और? नहीं सर, क्लियर हो गया? यस सर, जो भी क्वेश्चन था क्लियर हो हाँ क्लियर हो गया सर, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया। तो ये जो अनडू डेटा फाइल है वो इस काम में आता है। अब आप लोग बता, एक बार लास्ट क्लास में बोलते थे तो डिलीट करेगा तो क्या होगा, है ना, तो डिलीट का भी सेम चीज है। इस टाइम पे क्या होता है, तो हाँ क्या बोल रहे हो? डिलीट का भी तो ऐसा है, मतलब वो कॉपी से ही तो डिलीट होगा बफर कैशे में। हाँ सेम होगा। अब जब तक करेगा ये डिलीट करने के बाद जब तक आप कमिट नहीं मारोगे ना, तब तक क्या होगा, वो अनडू डेटा फाइल में रहेगा, ठीक है, तब तक वो डेटा फाइल में कुछ चेंज। हाँ डेटा फाइल में चेंज नहीं होगा जब तक कमिट नहीं मारेंगे। जब कमिट मार दिया तो डेटा फाइल में चेंजेस होगा और अनडू से भी हट जाएगा, ठीक है। ये अनडू एक सेफ साइड में काम करता है कि नहीं अपना, कि अगर डेटा डिलीट हो गया तो उसको रोल बैक करके फिर से वापस प्रीवियस डेटा सेट कर सकते हैं, है ना। तो जब तक कमिट नहीं होगा तब तक वो डेटा फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं जो आप डिलीट किए, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो। लेकिन जब कमिट कर दिया तो उसके बाद फिर इम्पॉसिबल अपने लिए, ठीक है। हाँ सर। तो ये था स्टोरेज, ये सब बताया था आप लोग को, हाँ आप लोगों ने बता दिए ये सेसॉक्स वगैरह ये सब तो नहीं पता था ना? नो सर। क्या था आज का क्लास, इंटरेस्टिंग था कि नहीं था? यस सर। हाँ डिफरेंट सिचुएशन में बताया। अब और कोई डाउट नहीं है इसमें? अब अभी अगर रीडू लॉग फाइल स्टार्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आधा इधर आज बताना पड़ेगा, आधा से भी कम बता पाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है।
ठीक है सर। सर ये जो एसक्यूएल क्वेरी दिया था ना क्वेश्चन के हाँ। लिए, तो वहाँ पे टास्क जो था, टास्क जो था ना, नहीं 50 क्वेश्चन दिए थे ना एसक्यूएल के ऊपर, तो हाँ 50 डाउट दिया है, था। मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक बार सॉल्व कर दीजिए ना। कौन सा डाउट है? बोल रहा हूँ सर, एक मिनट। फंक्शन तो सब सेम है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब कौन अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन सारे? सर चैट बॉक्स देखिए ना, हाँ क्वेश्चन एक सेकंड, क्या क्वेश्चन है? सर चैट बॉक्स में है, दे दिया। अच्छा ये हाँ सर। ये तो सिंपल है। सर कर नहीं पा रहा हूँ, एक बार दिखा दीजिए ना क्या होगा। दिखा देंगे तो कैसे चलेगा? इसमें से एक बताएंगे, आप बताओ। ठीक है। या तो यूजिंग कन्वर्जन बताएंगे या विदाउट यूजिंग कन्वर्जन बताएंगे, आप बताओ कौन सा बताएं। किससे नहीं बना ये क्वेश्चन? मैं देवजीत, ठीक है समझ में आ गया, मैं देख रहा हूँ। और किसी का बात कर रहा हूँ कि और किसी से बना कि नहीं ये क्वेश्चन? अभी पूरा नहीं हुआ है सर मेरा, कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं सर, पूरा नहीं किए हैं। अच्छा